બેન્જામિન ફ્રેન્કલિનનું જીવન વાંચજો. એ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ હતા. આમ તો જીવન ચરિત્ર વાંચવા જોઈએ, પણ એમના જીવન ચરિત્રના અંદર વિશેષતા છે. એમને પોતાને શું થતું, કામ બહુ કરે તો લોકો ફરિયાદ કરે કે તમે આ નથી કરતા, તમે મળતા નથી, તમે એટલે પછી એમને થયું કે હાડું આ આટલું બધી મહેનત કરું તો એમ મને તો ફરિયાદો જ આવ્યા કરે છે. એટલે એમણે અભ્યાસ ચાલુ કર્યો પોતાનો અને એક ડાયરી બનાવી અને એમાં એમણે લખ્યું, ભાઈ કરવા જેવા કામો કેટલા કર્યા, ન કરવા જેવા કામો કેટલા કર્યા, ન કરું તો ચાલે એવા કામ કેટલા કર્યા, કરીએ તો એ ઠીક, ના કરીએ તો ઠીક, એવા કામ કેટલા કર્યા. અને પછી ટીકમાર્ક કરવા માંડ્યા. સોમવારે જેટલા કામ કર્યા બધું ટીકમાર્ક કરે. મંગળ અઠવાડિયા પછી એમણે જોયું કે કરવા જેવા કામ ઓછામાં ઓછા કર્યા હતા અને ન કરું તો ચાલે એવા બધા જ કર્યા હતા. આપણને જ ખબર નથી હોતી હું આ ન કરું તો ચાલે ભાઈ પછી કરી જવાય તો ને, પણ આપણે નક્કી નથી કરતા, પ્રાયોરિટી નક્કી નથી કરતા. અને આ જો સહેજ આપણે ટેવ પાડી દઈએ કે કરવા જેવા કામોમાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં, તો તમે જોજો તમારા બધો સમય ઉપજાઉ થઈ જશે, એમાંથી કંઈ ને કંઈ આઉટપુટ મળ્યા કરશે. બીજું, કેટલાક લોકો એમ કહે છે ખૂબ કામ કર્યું એટલે થાક લાગ્યો. આ ખોટી વાત છે. ખૂબ કામ કરો એટલે થાક જ ના લાગે. ખૂબ કામ કરો એટલે સંતોષ થાય. તમને સાહેબે હોમવર્ક આપ્યું હોય, વધારે આપ્યું હોય, પણ જો પૂરું કરો એટલે કેવું હાશ એવું થાય છે કે નહીં? આ સત્ય છે. અને બાકી હોય તો મમ્મી હું દૂધ લેવા નહીં જાઉં, મારું લેસન બાકી છે. મમ્મી હું નાના ભાઈને નહીં રમાડું, મારું દૂધ બાકી છે. અરે મમ્મી તું રેડિયો બંધ કરને, મારું લેસન બાકી. એવું ચાલે ને ઘરમાં? કારણ કામ બાકી છે. ખરેખર કામ કર્યાનો થાક હોતો જ નથી, કામ કર્યાનો સંતોષ હોય છે. અને જીવનમાં તમે જોજો કોઈ દિવસ કામનો થાક લાગે જ નહીં. આ ખોટું ભ્રમ છે. બહુ કામ છે, થાકી ગયો. કાં તો પછી તમે ન કરવાના બધું કરતા હો તો થાકી જતા હો. અને તેથી સમયનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, સમય બરબાદ ન થાય એના તરફ આપણું ધ્યાન હોવું જોઈએ. મને યાદ છે એકવાર હું કેકા શાસ્ત્રીજી, તમે નામ સાંભળ્યું હશે, બહુ જ મોટા આ રાજ્યના ખૂબ મોટા વિદ્વાન, એમની સાથે એકવાર હું પ્રવાસમાં ગયેલો અને લગભગ 10 દિવસનો મારો પ્રવાસ હતો. અને મને એમ કે આ વડીલની સેવા કરવાનો મને અવસર મળ્યો છે, એમની સેવા કરું. એ વખતે એમની ઉંમર લગભગ 85-90 ની આસપાસ તો હશે. એ ગુજરી ગયા હતા, એમની ઉંમર 102 વર્ષ હતી અને આપણે એમની શતાબ્દી ઉજવી હતી. એમણે 250 કરતા વધારે ગ્રંથો લખેલા હતા. તો મેં એમને 10 દિવસ બરાબર ઓબ્ઝર્વ કર્યા. તમને આશ્ચર્ય થશે, એમણે શબ્દકોશ લખ્યો છે, ગુજરાતી શબ્દકોશ. માનો કે રેલવે ફાટક હોય અને રેલવે ફાટકમાં અમારી ગાડી ઉભી રહી હોય, તો આપણે શું કરીએ? ઉભા રહીને નીચે લટાર મારીએ, યા ત્યાં સિંગ ચણાની લારી હોય તો ત્યાં જઈએ, ક્યાંક ટમેટા મળતા હોય તો એ જઈએ, એવું બધું કરીએ ને. મેં જોયું કે જેવી બસ ઉભી રહી નથી કે પોતાના થેલામાં ચોપડો કાઢ્યો નથી, તરત આમ લખવાનું ચાલુ જ કરી દે અને ફરી પાછી ફાટક ખુલે અને બસ ચાલે પછી અમને મૂકી દે. મને એમ થાય કે આ માણસ સમયનો કેટલો બધો ઉપયોગ કરે છે. રાત્રે ક્યાંય પહોંચવાનું હોય, ધર્મશાળામાં અમે ઉતરતા, તો હું એમના માટે કે પથારી લેવા જઉં, એ પહેલા તો પોતાનું જે થેલો હતો એનું ઓછું કરીને સુઈ ગયા હોય. મારે એમને રાત્રે ઓઢાડવા પડે, કશું નહીં, કોઈ અપેક્ષા જ નહીં. ત્યારે હું જોતો હતો કે આ વ્યક્તિ આટલું બધું કામ કેવી રીતે કરી શક્યા હશે. સમયનો એટલો અદભુત ઉપયોગ કરતા હતા એ. મેં એટલા આમ અને બારીકાઈથી મેં જોયું છે ને. અને મને તાજ્જુબ હતું. અને એમના જીવનક્રમની અંદર પૂજા પાઠ, લેખન, વાંચન, આ ચીજમાં કોઈ 1 મિનિટનો ફરક નહોતો પડતો. અને 10 દિવસનું એટલું હેક્ટિક શેડ્યુલ હતું. એ ઘરે રહીને જેટલા કામ પૂરા કરતા હતા એટલા જ કામ એમણે પ્રવાસમાં પણ પૂરા કર્યા. એટલે મારા મન પર એની અસર હતી. અને 85-90 વર્ષની ઉંમર, આપણા ઘરમાં આપણા દાદાજી 85-90 વર્ષના હોય તો શું કરતા હોય તમને ખબર છે ને? આ 85-90 વર્ષની ઉંમરે અને 103 વર્ષ જીવ્યા, જીવનને કેટલું પરફેક્ટ એમણે રાખ્યું હશે એનો તમે અંદાજ કરી શકો છો. તો સમયનો સદુપયોગ, આ મંત્ર લઈને જો ચાલીએ, કરવા જેવા કામોને પૂરા કરવાનો આગ્રહ રાખીએ, કામમાં આનંદનો ભાવ અનુભવીએ, તો આપણને ચોક્કસ પરિણામ મળે. ओके, सुना आपने, सबने सुना? हाँ दादा।
हाँ दादा। क्या सुना? हम्म, काव्या। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और दिन भर में जो भी क्रिया किया वो उसकी नोट बनाने की, जैसे कि करने लायक काम न करे तो चले वैसे काम, और न करने जैसे काम, और फिर उसे देखने का कि हमने कितने करने जैसे काम किए हैं, कितने करने करते नहीं उस वो तो चले ऐसे काम किए, और करने नहीं चाहिए वैसे काम किए। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी तरह से सुना। तो आप क्या करते हैं? अम्म, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लूं मैं? कोई? एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं? आप पूछो। मैं પૂછ્યું ને કે આપણે શું કરીએ છીએ એ મેં પૂછ્યું. તમારે શું પૂછવું જ બીજું? नहीं नहीं, वो करने करने जैसा करने करने लायक काम कौन सा है, नहीं करे तो चले ऐसा काम कौन सा है, वो डिसाइड कैसे करोगे आप? जिया. हाँ, मतलब जिससे बेनिफिट मिले वो काम करेंगे। तीर्थ. क्या? जिससे बोलते बेनिफिट मिलता हो। नहीं, क्या बोला जियान? जिसमें बेनिफिट बेनिफिट मिल. जिस मिलता हो। हाँ. तीर्थ. हाँ, ओके। और तीर्थ तीर्थ. जिससे हमें संतोष मिलता हो। ओके तीर्थ. जो काम हमें अच्छा लगे वो करना चाहिए। अच्छा लगे वो करने का. श्रेया. जिसमें हमारा फायदा होता है। फायदा, उसका फायदा का तो मीनिंग मांगता है ना. फायदा किधर होता है? नहीं, मैंने पर. मैंने मैंने कुछ अलग पूछा आप लोगों को। आप डिसाइड कैसे करोगे कि ये काम मुझे करना चाहिए, ये नहीं करे तो चलेगा? ये डिसाइड कैसे करोगे आप? लक्ष्य. दादा मम्मी के पास जाके मम्मी से टिक करा के कि ये काम करने लायक थे और ये काम नहीं करने लायक थे। ओके. वो पर. तो आपने हेल्प ले ली, हेल्प ले ली वो तो आपने। पर. अभी तो आप बड़े हो गए ना, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है ना, हाँ कि दादा। नहीं आता है? आता हाँ है। तो સંતોષ આનંદજી બધાને પૂછી લો પછી તમે વાત કરો. પર. हम्म, हाँ कि दादा जो और वो जो काम करते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन सा काम है। કાવ્યા. दादा दूसरों की मदद करते हैं तो वो काम करने जैसे, और जो नहीं करेंगे वैसा चलेगा, जैसे कि टीवी देखना, मोबाइल देखना, और हमारे फायदे के काम। શ્રેયા. जिसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। જીયા. જીયા. सोते. हाँ, दर्द. तीर्थ. ओके. तुम हाँ, लोग को जैसे एक क्वेश्चन आता है, यू शुड नो द आंसर. ओके, अभी संतोष आज किसी ने स्टडी का नहीं बोला. संतोष आनंद जी बोलो अभी. नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने उनको उन जो अपने हम सब ने जो सुना ना मोदी जी की स्पीच, उसमें उन्होंने जो एग्जाम्पल केका शास्त्री का दिया उन्होंने, और दूसरा उन्होंने जो अमेरिका के उसके राष्ट्रपति का जो बेंजामिन. एग्जाम्पल दिया। बेंजामिन तो फ्रैंकलिन. हाँ, तो उन्होंने जो नोटिंग बनाए थे कि करने लायक काम कौन से है, नहीं करे तो चले काम है, ऐसा कौन कितना करता हूं मैं, नहीं करूं करे तो भी चलेगा, नहीं करेगा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसे काम कितने हैं, जो करने नहीं चाहिए वो काम कितने किए। तो उन्होंने ये फोर फोर डिवाइस किया, 4 पॉइंट डिवाइस किया कि करने लायक काम। फिर उन्होंने हफ्ते का उनका एनालिसिस किया तो कि करने लायक काम कितना किया उसमें से, फिर नहीं करे तो चले ऐसा काम कितना किया, नहीं करना चाहिए वो काम कितना किया, करे तो भी चले नहीं करे तो भी चले इतना काम।
तो उन्होंने ये डिफाइन कैसे किया वो हमें समझना है। वैसे ही हमारा जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन है, और अभी हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी प्रायोरिटी पढ़ाई होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पढ़ाई। फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई। सेकंड प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए, जो अपने प्रेयर में हम बोलते हैं, बराबर है। और थर्ड प्रायोरिटी तीन गोल है तो क्या? आपका श्रेया। दादा सर दादा ज्ञान। थर्ड दादा प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी कौन सी होती है? तो कि हमारे निमित्त से मम्मी पापा को या किसी भी घर के सदस्य को या किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए, और हो सके तो मम्मी पापा की अच्छे मन से सेवा करनी चाहिए। ये हमारी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या? पढ़ाई। 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 क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये सब चेंज होगा। आप जैसे जैसे मैच्योर होंगे, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, वैसे वैसे सत्संग प्रायोरिटी चाले चेंज છે होती जाएगी। लेकिन अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई, सेकंड हेल्थ। हेल्थ परमानेंट है। सेकंड और थर्ड वो प्रायोरिटी परमानेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी चेंज होती रहेगी। पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी आ जाएगी। लेकिन अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये तीन प्रायोरिटी, तो इसके हिसाब से हमें देखना है कि हमें करने जैसे काम कितने किए, नहीं करने जितने काम कितने किए, नहीं करे तो चले ऐसे काम कितने किए, तब तब हम वो नोटिफाई कर पाएंगे। उसके बिना हम नोटिफाई नहीं कर पाएंगे। हम ये क्या बोलते हैं, जनरली बात कहेंगे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन नोटिफाई नहीं कर पाएंगे हम। जब तक हमारी प्रायोरिटी ये गोल तीन जो मैंने बताए वैसे हम डिफाइन नहीं करेंगे, उसको डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रायोरिटी चेंज होती रहेगी, और चेंज होती रहेगी तो सब कुछ चेंज होता रहेगा। तो इस हिसाब से आप नोट बनाओगे ना तो काम में लगेगी हमें। इस हिसाब से हम नोट बनाएंगे तो सब काम में लगेगा। लेकिन जनरल हम बना देंगे ना तो कुछ काम में नहीं लगेगा, क्योंकि समय समय पर प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल दे दूं, एक एग्जांपल दे दूं। अभी हमने बात बताया कि मम्मी पापा की सब बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए, बराबर है। और सबको है भी कि नहीं, मम्मी पापा को दुख नहीं देना चाहिए, उनकी सब बात सुननी चाहिए। अभी एग्जाम है और आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसकी आप पढ़ाई कर रहे हो, और उस समय पर किसी ने आपको डिस्टर्ब किया या मम्मी ने बताया कि ये लेके आ जाओ, तो क्या होगा? मम्मी पर गुस्सा। हाँ, क्या करोगे आप? मना कर देंगे। काम करोगे कि पढ़ाई करोगे? पढ़ाई। पढ़ाई। तो क्या पढ़ाई करेंगे? क्यों? क्यों? एग्जाम नजदीक है। एग्जाम है और उस सब्जेक्ट में हम वीक है, तो ज्यादा मेहनत करनी है हमें। तो हमारा चित्त मुश्किल से पढ़ाई में लगता है, और उस समय पर हमारा चित्त डिस्ट्रैक्ट होगा, तो जितना पढ़ा है वो भी हम भूल जाएंगे। तो उस समय आप अपने मम्मी को बोल सकते हैं कि अभी मेरा मुश्किल सब्जेक्ट है ये, तो मुझे अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, तो मैं पढ़ाई करने के बाद वो चीज आप जो भी बोलोगे वो लाके दे दूंगी। तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या हो गई उस समय? तो क्या अभी मुझे पढ़ाई करना है, काम नहीं करना है। मम्मी ने बताया लेकिन वो काम अभी नहीं करना है, वो हो सके तो बाद में करेंगे, नहीं तो आप कर लो, लेकिन अभी मुझे ये करना है। तो ये प्रायोरिटी क्या है कि वो समय के हिसाब से चेंज होती रहती है।
तो हमें वो भी साथ साथ में समझना है। अभी अभी हमें हमें ये जो बात बताई ना, तो हमें एक नोट कर लेने का कि हम पूरे दिन में कैसे कैसे काम क्या क्या करते हैं, तो उसके हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा। और कुछ मालूम पड़ता है। देखो चलो, हम कितना साल से श्रेया, जिया, आप तो थे, 3 गोल बता रहे थे। ओके, संतोष काका ने बोला ना, स्टडी, हेल्थ एंड अपने दादाना सत्संग। तो दादाना सत्संग मेन प्रायोरिटी उसने बोला, राइट। अभी आपको गोल नहीं होता तो क्या होएगा? हाँ, यू विल नेवर रीच दैट। अभी को अभी स्टडी करने का है, कुछ कुछ ये हाई जाए ना का, गोल नहीं हो तो कैसे करेगा? सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आज का सब ये सारा भी अभी आप नोट बनाओ कि ये 3 गोल लिखो, और उसमें किधर टाइम जाता है, कितना टाइम जाता है वो लिखो, और बाद में नीचे कितना एक्स्ट्रा टाइम आप करते हैं, किसमें जाता है वो लिखो। ओके, तो मालूम पड़ेगा कि आपको इम्पोर्टेंट काम आप करते हैं कि नहीं इम्पोर्टेंट काम करते हैं। ओके, हेल्थ में प्ले भी आ जाता है। ओके, प्लेइंग भी आ जाता है हेल्थ में। सो दैट इज में वेरी एक्सरसाइज वेरी एक्सरसाइज आ गई, योगा एक्सरसाइज, आ गया, प्ले। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलो कल से ये सब नोट बनाने का। ओके, श्रेया आप कौन तो कौन बनाएगा? कौन नहीं बनाएगा? हाँ, कौन कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। मैं ट्राई शुरू करूंगा। ओनली ओनली का पर आप नहीं करने वाले हैं? हाँ दादा करूंगा। आपका हाथ नहीं दिखाई जाता है? नहीं, ओके, किसी सबका का आवाज नहीं आया। यस, किसी ने दादा मैं कर सब कॉन्फिडेंटली किसी ने नहीं बोला यस मैं डू इट। कल 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 पता लगेगा। ओके, सब फोटो करके हमको भेज देना, जस्ट सेंड इट टू मी। ओके श्रेया, आप तो वीक में नहीं आएगा तो हम कैसे बनेगा? मम्मी को होमवर्क हाँ दादा। देगा आपका पिक्चर भेजने का हाँ। एवरी डे? श्रेया मम्मी होमवर्क कर लेगी आप क्या? तो मम्मी तो चलेगा ना? बहुत मम्मी तो बहुत बिजी है ने, तो अभी गुम हो जाएगा सब। अहमदाबाद में अच्छा। अहमदाबाद में अहमदाबाद में बहुत बिजी आदमी होते हैं, बहुत बिजी। अहमदाबाद में सब बेकार बिजी बहुत होते हैं अहमदाबाद में। संतोष आनंद जी, हम पूछते हैं कि हाँ भाई जी। आपको आपको पद आज खाने रेडी है, तो एक अंगूठा बताते हाँ, हैं। व्हाट इज दैट? ये कौन सा रिस्पॉन्स होता अंगूठा यानी थम्स अप रेडी है। अंगूठा यानी थम्स अप रेडी है, ऐसा। है? ओ थम्स अप। हाँ, हमें तो पॉजिटिव ही लेने का है। अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो हमें तो पॉजिटिव ही लेने नहीं, का है। थम्स मैं अप, यस, पूछता रेडी है। मैं पूछता वो कौन सा लैंग्वेज होता है, या आई एम जस्ट वांट टू नो। हमको तो हम तो बुद्धू आदमी, हमको कुछ मालूम नहीं पड़े वो लैंग्वेज क्या होता है, अभी हमको सीखना पड़ेगा। हाँ, ओके चलो, जय थम्स अप यानी सच्चिदानंद। यस। यस यानी व्हाट? चलो जय सच्चिदानंद। ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चे। हाँ, आप ओके। प्लीज तेरा फोटो भेज देना हमको। ओके, ओके, जय सच्चिदानंद।